Hello everyone, this is lecture number 5 for vector algebra and this will be the final lecture for this unit. So previously we discussed about dot product of two vectors, and as we said we will be discussing cross product of two vectors. In dot product of two vectors we saw the dot product of two vectors will be a scalar quantity, and later we did many observations based on the dot product, and उसके बाद फिर हमने कुछ problems भी देखे in which we proved Cauchy-Schwarz inequality, that was a vector dot b vector less than equal to a vector dot b vector. Okay, and after that we also proved triangular inequality with the help of some inequalities and this Cauchy-Schwarz inequality. तो उस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से हमने एक कॉन्सेप्ट, एक रिजल्ट निकाला था, और जैसा कि हमने बताया था लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में हम उस पर प्रॉब्लम करेंगे. सो वो नेक्स्ट क्लास, वो घड़ी आ चुकी है. सो ओके, सो पहले एक बार रिकॉल कराता हूँ मैं आपको. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, triangle inequality. So triangle inequality is if we have two vectors, a vector and b vector, हमारे पास दो vectors हैं, then the triangular inequality, what it says, it gives a relation that a vector plus b vector का magnitude will be less than equals to a vector का magnitude plus b vector का magnitude. And then later we said if the equality holds, if the equality holds, if the equality holds in this triangular inequality, इक्वालिटी होल्ड हो रही है मतलब कि दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. देन ए सी वेक्टर प्लस, सॉरी सेकेंड, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड equals to AB vector का magnitude plus BC vector का magnitude. If we can show this, then A, B, C, these 3 points will be collinear. This will be helpful in showing that the points A, B, C are collinear. So this is what we did in the very last moment of the last class. So अब इस पे एक problem देखते हैं, and let us try to prove collinear with the help of this concept. Problem number 1. Show that the point A minus 2i cap plus 3j cap plus 5k cap, and the next point क्या है हमारे पास, B I cap plus 2j cap plus 3k cap, and the third point C is 7i cap minus k cap are collinear. We have to show that these 3 given points are collinear. तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम दिखाएंगे कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है. दैट मीन्स व्हाट वी वांट टू शो इज AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर. अगर हम ये दिखा दे देन वी आर डन. So first goal, what will be the first goal, what will be the approach, first step towards this problem? So हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम AC वेक्टर को फाइंड आउट करें, हम AB वेक्टर को फाइंड आउट करें, हम BC वेक्टर को फाइंड आउट करें. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और फिर जो हमारी इक्वेशन है
वो परफॉर्म करने की, ऑपरेशन परफॉर्म करने की हम कोशिश करेंगे. तो लेट अस फाइंड AC फर्स्ट. सो AC will be given as 7 minus 2 minus 2 minus minus 2 I cap plus 0 minus 3 K cap J cap plus 3 sorry minus 1 minus 5 K cap. Okay, so this will be 9 I cap minus 3 J cap minus 6 K cap. तो ये आ गया हमारा AC वेक्टर. Similarly, we have to find AB vector. So AB vector will be 1 minus minus 2 I cap plus 2 minus 3 J cap plus 3 minus 5 K cap. So this will be 3 I cap minus J cap minus 2 K cap. So this is our AB vector. Now what we have to find is BC vector. So BC vector will be 7 minus 1. 7 minus 1 I cap 0 plus 0 minus 2 J cap, and then we will have 1 minus 1 minus 3 K cap, minus 1 minus 3 K cap. So this will be 6 I cap minus 2 J cap minus 4 K cap. Now we have AB, AC and BC. So if we find the magnitude of AC, what we get, AC वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो क्या इतना आएगा 81, 9 स्क्वायर 81 होगा, 3 स्क्वायर 9 और 6 स्क्वायर कितना होगा 36. सो दिस विल बी 81 प्लस 9 90. और यहाँ आ जाएगा आपके पास, कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद पूरा फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ मैं. यू विल गेट 3 अंडर रूट 14. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 14. Okay. Similarly, you have to find the magnitude of BC vector. So magnitude of BC vector will be 2 under root 14. And now observe that AC, this equation, this particular equation star holds. AB का सम AB और जब हम BC का सम करेंगे हमें क्या मिल रहा है, AC मिल रहा है. Observe that star holds. Hence A, B, C are collinear. All right. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. चलिए अब एक दो प्रॉब्लम्स और करते हैं हम. प्रॉब्लम नंबर 2. So in problem number 2, what we have to do is show that magnitude of A vector, B vector plus magnitude of B vector, A vector is perpendicular to magnitude of A vector, B vector minus magnitude of B vector, A vector for any two non-zero vectors. Zero vector. So इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है? In this problem we have to show that कि ये जो हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है. हमें ये शो करना है. अब दिखने में तो वेक्टर जैसे नहीं लग रहे हैं, बट अगर आप कोई ए को वेक्टर और बी वेक्टर कुछ एक्सप्लिसिटली एज्यूम करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू विल सी यू विल गेट अ वेक्टर. और आप जब उन दोनों को चेक करेंगे परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए तो वो परपेंडिकुलर भी आएंगे फॉर श्योर. बट हमारे पास तो इन जनरल कुछ वेक्टर दिया हुआ है, हमें तो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है. तो कैसे अप्रोच किया जाए इस प्रॉब्लम को, ये सोचना पड़ेगा. तो हमें ये तो पता है कि ये दोनों क्या है, वेक्टर है. तो इसका नाम रख देते हैं ए वेक्टर और इसका नाम रख देते हैं हम बी वेक्टर. तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम में बची क्या है हमारे पास कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है
हमें इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? दीज टू आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। Now, what we have to do is we have to show that these two vectors are perpendicular. यानी कि हमें theta is known, and when the theta is known and theta is 90 degree, so here theta is 90 degree. So we can simply substitute theta in this formula. So this will be a vector dot b vector equal to a vector b vector cos 90 degree, and cos 90 degree is 0. So this implies that a vector dot b vector equal to 0. हमें ये दिखाना है। हालांकि हम ये डायरेक्टली रिजल्ट के फॉर्म में स्टडी कर चुके हैं कि कब हम दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कहेंगे, बट एक रिकॉल कराने के लिए मैंने आपको ढंग से दिखा दिया कि ये चीज अगर हम शो कर दें तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब वैसे देखने पे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, बट अगर आप फंडामेंटली चलेंगे चीजों को लेके तब इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो हमारा को गोल क्या है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 दिखाना है हमें। तो अब वही करेंगे अपन। सो हमें को क्या करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 ये दिखाना चाहते हैं, ये शो करना है। तो व्हाट वी हैव, ए वेक्टर कितना था हमारा? ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर, ओके, इक्वल टू 0। यही है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको 0 दिखाना है। अब देखते ही क्या लग रहा है कि खोलना पड़ेगा ब्रैकेट को, थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा ये सवाल हमारे लिए। तो अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू बी डॉट बी, एंड नेक्स्ट वी विल हैव ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। सिमिलरली वी विल हैव ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब इसके लिए इस पे आ चुके हैं अब हम, ठीक है। एंड इफ वी मल्टीप्लाई दिस विद दिस वी गेट बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करो। और अब जब अपने को फॉर्मूला पता ही है कि बी वेक्टर डॉट बी, हमें क्या पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे? इसमें हो क्या रहा है कि बी डॉट बी कर रहे हैं, मतलब कि ए विल बी रिप्लेस्ड बाय बी। तो बी डॉट बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और जब एंगल वेक्टर सेम ही है तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल भी कितना होगा? 0 हो गया। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू कैन हैव टू जस्ट substitute these values in above. So this will be vector का square, and these two terms will get cancelled. These term and this term will get cancelled. And if this will be b vector का square into magnitude of a vector का square. अब ये दोनों भी, अब ये भी क्या है? एक रियल आएगा, ये भी एक रियल है, ये भी रियल है, मतलब कम्यूट तो कर ही जाएंगे। तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। और क्या हम यही चाहते थे? क्या हम यही चाहते थे कि ये हमारा 0 आ जाए? हाँ बिल्कुल, हम यही चाहते थे और वो हमारा 0 आ गया। हेंस ट्रू, ठीक है। So now let us look at one more problem. Problem number 3. Problem number 3. If a vector dot a vector equal to 0 and
a vector dot b vector equal to 0, then what can be concluded by concluded concluded about the vector b? अगर हमें दो कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे हमारे को दो कंडीशन दी हुई है कि a डॉट ए इक्वल टू 0 है और a डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो आप बी वेक्टर के बारे में क्या क्या कह सकते हैं, बी वेक्टर क्या होगा? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा इन दो कंडीशंस के ऊपर। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमें 0 दिया हुआ है, और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, मतलब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, यही है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम है, ए डॉट ए मतलब सेम वेक्टर के साथ हो रहा है, कि कोई हमारे पास ए वेक्टर ये है, इसका खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो दूसरा वेक्टर है हमारा वो ए वेक्टर ही है, मतलब ऐसे पड़ा हुआ है इसी के ऊपर ही है, तो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज। सो व्हाट विल हैपन हियर इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और कॉस्ट 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, और हमें क्या दिया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट कितना है ए डॉट ए का, 0 है। सो ये टर्म कितना, 0 दिया हुआ है, so this implies that a vector का स्क्वायर इक्वल टू 0। हाउ वी डिड इट इज, हमें दिया हुआ है ये चीज, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 0 आ रहा है, दिस implies that magnitude of a vector is 0। आपको ये चीज पता चल गई। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा दिखता होगा, अब ए वेक्टर आपका इस प्रकार का होगा कुछ, ए वेक्टर आपका कुछ इस प्रकार का होगा, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इस प्रकार का होगा। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे वो क्या बनेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब ये सारे स्क्वायर के टर्म्स हैं, इनका सम करोगे वो भी पॉजिटिव आएगा, और अंडर रूट करने में मतलब ओवरऑल पॉजिटिव टर्म बनेगी, या फिर ढंग से ज्यादा प्रिसाइजली कहूँ तो नॉन नेगेटिव टर्म बनेगी। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में फर्क है हल्का सा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 और नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मैग्नीट्यूड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, यानी कि या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। सो सिंस हमारा मैग्नीट्यूड 0 आ गया, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके बराबर होता है, और हमारा आ क्या रहा है, 0 आ रहा है, तो ये चीज यहाँ रख कर देखें अगर हम, तो हमें क्या मिल रहा है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, अगर इस सम ऑफ स्क्वायर्स अगर सम ऑफ स्क्वायर्स को 0 बनना है, तो क्या कंडीशन लगा, किसी तरीके से आप इन पॉजिटिव टर्म्स को 0 कर सकते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं और इनका सम हो रहा है, तो 0 तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते इनको। 0 कब होंगे, एक ही कंडीशन में होंगे कि ये सारे के सारे क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये उसी केस में ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं हमारे 0 हो पाएंगे। उसके अलावा आप इन स्क्वायर्स टर्म है, मतलब नेगेटिव तो होंगे नहीं, और सम हो रहा है तो कम भी नहीं होगा, बढ़ेगा ही, तो ये 0 तो हो ही नहीं पाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू 0। दिस implies that a वेक्टर क्या है आपका, 0 वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है। तो जो आपको कंडीशन दी हुई थी a डॉट बी इक्वल टू 0, वहां पे जो a 0 आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है, ये इस भाई साहब के कारण आ रहा है, ए वेक्टर के कारण, इसमें बी की कोई गलती नहीं है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट बी वेक्टर satisfying a vector dot b vector equal to 0 can be any vector। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बी पे, बी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारा पाप जो है हमारा ए वेक्टर कर रहा है, 0 वही बना रहा है। ठीक है, चलिए।
आगे बढ़ते हैं, एक और सिंपल सा प्रॉब्लम देखेंगे हम डॉट प्रोडक्ट पे, उसके बाद हम सीधा जाएंगे अपना क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 4, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। एक कंडीशन दे दी कि ये यूनिट वेक्टर्स है, और यूनिट वेक्टर्स होने का क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर्स होने का मतलब ये है कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। मतलब कि ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। और हमें एक और कंडीशन दे दी इन्होंने कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का सम कितना है, 0 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हमें इन इसकी फाइंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हाउ वी विल डू दैट? फर्स्ट लेट अस वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं हमारे पास जो जो गिवन है। सिंस हमारा जो वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो गिवन दैट ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। यही कंडीशन हमें मदद करेगी इस तक पहुंचने में। कैसे मदद करेगी, अब वही हमें फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ए बी बी सी सी ए, और यहाँ पे ए बी सी है बस। तो मतलब मैं अगर ए मल्टीप्लाई कर दूं, बी मल्टीप्लाई कर दूं, सी मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ हिसाब बैठ सकता है हमारा, अगर इसमें हम देखें गौर से। तो चलिए ट्राई करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए, मल्टीप्लाई ए, मल्टीप्लाई ए वेक्टर। तो ए वेक्टर जब आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट 0। और अभी पीछे पीछे अभी जस्ट पीछे करके आए हैं, ये टर्म किसके बराबर होती है, ये टर्म बराबर होती है इसके। तो डायरेक्टली रख देते हैं, ये आ गया मैग्नीट्यूड के बराबर। तो कोई दिक्कत नहीं है इतने में, तो फटाफट लिख दो, थोड़ी कुछ चीजें तो स्किप करके अपन, है ना, सॉरी थोड़ी हर चीज लिखी जाए। अब सिंस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक कंडीशन मिल चुकी है यहाँ पे नई। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं 1। अभी देखो आपके पास ए बी आ गया, ए सी आ गया, बट बी सी नहीं आया। तो कुछ और भी अभी कैलकुलेशन करनी बाकी है मतलब। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 में अभी आप क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बी वेक्टर, तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब 0 कैसे हुआ, यहाँ पे पीछे वेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे बी डॉट ए गड़बड़ कर दी, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा ऊपर, क्योंकि ए डॉट 0 होने के बाद वो स्केलर बन गया, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पे अब। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ए डॉट बी, बी डॉट बी, बी डॉट सी, तो एज यूजुअल इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, वो पीछे किया था अपन ने सेम कॉन्सेप्ट से, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। एक और कंडीशन आ चुकी है हमारे पास, कंडीशन नंबर 2। अब बी ए आ गया हमारा, बी सी भी आ गया, सी ए भी सी ए भी आ गया, बट अभी भी अगर आप इनको जोड़ने जाओगे आपस में तो अभी भी कुछ लोचा है, गड़बड़ है। कि ए बी तो हमारे पास कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। ए सी हमारा कितनी बार आया, 1 बार आया। बी सी 1 बार आया, तो मतलब ए बी अब 2 बार आ गया आपका, तो उसको कैसे एडजस्ट करोगे, आपको तो एक ही बार चाहिए ना ए बी। तो इसको, इसके लिए काम करते हैं, एक बार और करते हैं यही वाला काम, ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी में इस बार सी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस विल बी सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0 वेक्टर। नहीं, वेक्टर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन ने।
हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, एज यूजुअल 1 हो जाएगा, सो वी विल हैव दिस एंड दिस इज थर्ड। अब इन तीनों में अगर मैं तीनों को सम करूं तो क्या मिलेगा, एडिंग 1 2 एंड 3। अगर मैं 1 2 एंड 3 को ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 3 बार 1 आएगा, है ना, एक ये 3 बार 1 आएगा, तो क्या लिख दे, 3 लिख देते हैं, ठीक है। और 2 बार ए बी आएगा, 2 बार बी सी आएगा, 2 बार सी आएगा, है ना। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, अरे भाई सम ही तो कर रहे हैं इनका, ठीक है। तो अब 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो दिस विल बी सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -3/2। तो जो हमें वैल्यू निकालनी थी इस टर्म की वो कितनी आई, -3/2, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक अपने को। अब आगे चल सकते हैं अपन, और अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, विच इज द फाइनल टॉपिक वी आर रिमेनिंग विद इन दिस यूनिट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, पीछे जो हमने पढ़ा था अभी ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते थे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें हमेशा एक स्केलर मिलता था, एक रियल नंबर मिलता था। इसे हम क्या कहते, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। लेट अस डिफाइन द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट, the vector product for two non-zero, vector product of two non-zero vectors, a vector and b vector, b vectors is denoted by, डिनोट किससे करते हैं हम इसको, a क्रॉस b से, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट नाम है इसका। ए, कुछ सारी चीजें लॉजिकल है, ऐसे ही किसी चीज का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, a क्रॉस b से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज A cross B equal to magnitude of A into magnitude of B into sin theta into n cap। और n cap क्या है, पहले चलो थीटा जान लेते हैं। where where theta is angle between A and B, angle between A vector and B vector, और थीटा हमारा 0 से पाई में वेरी करता है। और n cap is a unit vector perpendicular to both A and B, to both vectors A and B vectors, ठीक है। तो vector product of two non-zero vectors is denoted by A cross B and is defined as A cross B equal to A vector का magnitude into B vector का magnitude into sin theta n cap, where theta is angle between both the vectors and n cap is a unit vector perpendicular to both vectors, ठीक है। So now let us make quick observations based on this observation, observations कहो या result कहो, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। The first observation
जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, क्रॉस बी इज अ वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस बी करने पे आपको एक वेक्टर ही मिलेगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारा कि अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, लेट ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो, अगर उनका देन इफ देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो कब होगा, किस केस में होगा इनका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो? तभी हो पाएगा जब ये दोनों क्या हो जाए, या तो पैरेलल हो या कोलीनियर हो। इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और कोलीनियर टू ईच अदर। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर if and only if a vector is parallel to b vector। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव इज एंगल परपेंडिकुलर की बात करते हैं हम। इफ थीटा अगर आपका पाई बाय 2 है, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आएगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग इज आई क्रॉस। जैसे कि हमने देखा पीछे जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट क्लास में, उसमें हमने क्या देखा था कि ये आई है, ये जे है और ये के है। हम वहां पे इनके डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे आपस में कि आई डॉट आई करने पे क्या मिलेगा आपको, आई डॉट जे करने पे क्या मिलेगा आपको, वो सब हमने डिस्कस किया था। अब हम जानने में इंटरेस्टेड है कि आई क्रॉस आई करने पे क्या मिलेगा, जे क्रॉस जे करने पे क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि आई वेक्टर इज यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 अक्रॉस एक्स एक्सिस, वाई के अक्रॉस जे है, जेड के अक्रॉस के है। ये बात आपको पता है। तो अगर और और अगर हमें ये जानना है कि आई क्रॉस आई क्या होगा, वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग आई क्रॉस आई। हम यहाँ पे क्या किया, हमने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं खुद के साथ, खुद के साथ ले रहे हैं तो एंगल कितना हो गया, खुद के साथ ले रहे हैं तो एंगल कितना हो गया, देखो इस फॉर्मूले में एंगल कितना हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री हो गया तो साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है। तो आई क्रॉस आई कितना हो जाए, 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे जब आप करेंगे वो भी कितना हो जाएगा, 0। जब आप के क्रॉस के करेंगे वो भी कितना हो जाएगा, 0। नो प्रॉब्लम विद दिस। ठीक है, अगर हम आई क्रॉस जे करें, यहाँ पे देखो थोड़ी गौर करने वाली बात है, इसलिए मैंने ये सुंदर सा डायग्राम बनाया, ये गोल चक्कर सा। ये तो हमने डॉट प्रोडक्ट में तो क्या था, आई डॉट आई 1 है, मतलब सेम के साथ करोगे तो 1 आएगा और अपोजिट के साथ करोगे तो 0 आएगा, वहां पे तो ये कॉन्सेप्ट था। बट यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो आई क्रॉस जे करोगे तो एक बात ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो ए क्रॉस बी जब आप करते हैं तो वो एक ऐसा वेक्टर देता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी करने पे आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि अभी हमने कार्टेशियन प्लेन बना के बताया कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस आपका आई होता है, अलोंग वाई एक्सिस आपका जे होता है, अलोंग जेड एक्सिस आपका क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो अगर आप निकालने जाएं आई क्रॉस जे तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से देखो, अगर आप आई क्रॉस जे यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, के आ रहा है। और चलो पहले तो ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, अपन पहले देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आई आई वेक्टर ये नीचे वाला है और ये जे है। ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, के वेक्टर है। तो आपको क्या मिल जाएगा,
के वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। ठीक है, सिमिलरली अब आप जे क्रॉस के निकालेंगे, तो जे क्रॉस के परपेंडिकुलर कौन है, एक्स एक्सिस, तो आई कैप। और सिमिलरली अगर आप के क्रॉस आई निकालेंगे, व्हाट यू विल गेट इज जे कैप। तो अब यहां से ट्रिक समझ सकते हैं कि जब भी आपको ध्यान नहीं आ रहा हो या तो कोई दिक्कत आ रही हो, तो ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये सुंदर सा जो सर्कल बनाया है, ये चक्का सा, ये आप याद कर लीजिए। आई जे के, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाओ, आई जे क्रॉस होंगे तो के मिलेगा, जे के क्रॉस होंगे तो आई मिलेगा। ठीक है, यहां तक तो बन गया। अब देखो, अगर जे आई अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, जे आई करोगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, के जे करोगे तो आई मिलेगा, जे आई करोगे तो के मिलेगा, जे आई करो और के जे करोगे तो आई मिलेगा, और आई के करोगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको एज अ ट्रिक याद कर सकते हैं इसको। तो आ जे क्रॉस आई करोगे तो आपने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट किया, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा। ठीक है, और जे, हाँ, तो अगर आप आई क्रॉस के करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस जे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात गौर कर पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग एक बात गौर कर पा रहे होंगे कि वो है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। कैसे, आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि जैसे आई क्रॉस जे किया तो हमें के मिला, बट जे क्रॉस आई किया तो माइनस के मिला। तो ये तो काफी एविडेंट है ये पिक्चर से कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। और जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में भी डिफाइन किया था एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो सेम यहाँ पे भी हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a vector and b vector is given by sin theta is equal to a vector cross b vector magnitude upon a vector into b vector का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए अब आगे चल सकते हैं अपन। नेक्स्ट थिंग इज, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, और रिलेशन तो कुछ तो रिलेशन होगा ही ना, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये इनके बीच में रिलेशन है। वैसे कम्यूट नहीं करता है, बट रिलेशन है इन दोनों के बीच का ये। उसके बाद हम आ रहे हैं हम अगली ऑब्जर्वेशन पे, विच विल हेल्प अस टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर represent the adjacent angles, adjacent sides, sorry, sides of a triangle, then its area will be given by what term। वो देखने से पहले हम थोड़ा सा फिगर से इसको समझते हैं। ये आ गया हमारा ट्राइंगल, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये हमने डाल दिया डी। सो ये है हमारा एंगल थीटा, और ये वेक्टर है बी वेक्टर, पूरा का पूरा ये वेक्टर है बी वेक्टर, और ये है ए वेक्टर, और ये आ गया अपनी हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें एरिया क्या होता है एक ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है ए बी, और हाइट कितनी है सी डी। तो ए बी में जान लूं, अगर सी डी जान लूं तो वी आर डन। ठीक है, सो ए बी कितना है यहाँ पे, ए बी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, एंड सी डी कितना है यहाँ पे, सी डी जानना इज इंपॉर्टेंट। तो सी डी को निकालने के लिए अपन ए सी की मदद लेंगे। ठीक है, तो
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर बनाऊं ऐसे, सो वी कैन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ AC on CD. So the magnitude of that projection vector will be A vector into sin theta. ठीक है, तो अब सिंपली रखो ये दोनों वैल्यूज इसमें रखो, तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A sin थीटा, ये मिल रहा है आपको। और फॉर्मूला देखो, आपका फॉर्मूला क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का? क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा n कैप, यही है आपका फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड ले लूं ऐसे, तो क्या मिलेगा मुझे? और n कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो उसका तो खेल खत्म ही हो गया सारा का सारा। और एरिया सिंस हमारा पॉजिटिव होता है तो साइन को भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा, तो ये आपका किसके बराबर आ गया? 1/2 A vector cross B vector का magnitude. So this is the formula to find the triangle area of a triangle whose adjacent sides are A vector and B vector. Similarly, we can find the formula to find the area of a parallelogram. Area of parallelogram. सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके आप पैरेललोग्राम के लिए भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इसका रिजल्ट लिख देते हैं। तो अगर ए वेक्टर और दो बी वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपली हमारे 2 हटा दिया डिनोमिनेटर में से, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको चाहे तो। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? वी हैव property. We have a property. So first property is distributivity of vector product over addition. Distributivity of vector product over addition. So अगर हमारे पास A क्रॉस B प्लस C है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। और सिमिलरली अगर कोई लैम्डा है स्केलर और A क्रॉस B हो रहा है, सो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा A का ऐसे करके क्रॉस निकाल लो या तो आप, या फिर आप इसका ऐसे करके क्रॉस निकाल लो, सब एक ही बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने फॉर्मूला देखा था क्रॉस प्रोडक्ट का, बट क्या हम उस फॉर्मूले की मदद से इतनी आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल भी पाएंगे? आई थिंक तो, क्योंकि वहां पे एक एन कैप वेक्टर इन्वॉल्व है, और एन कैप कैसे जानोगे? तो इसलिए हमारी मदद करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनाया गया है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर आप अज्यूम कीजिए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, यही फॉर्मूला आपके काम आने वाला है मेनली क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। बाकी तो सब वैसे ही हैं। अगर आपका ये है तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, अलग कलर से लिखेंगे, बहुत खास फॉर्मूला है ये हमारे लिए, बहुत काम आएगा। A क्रॉस B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3. When you will solve this determinant, you will get a vector which will be equal to the cross product of these two vectors. And जो आपका वेक्टर निकल के आएगा वो A और B के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी जानने लायक चीजें थी
वो हमने डिस्कस कर ली। अब नाउ इट्स टाइम टू डू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रॉब्लम नंबर 5, फाइंड a vector cross b vector if a vector equal to 2 I cap plus j cap plus 3 k cap and b vector is equal to 3 I cap plus 5 j cap minus 2 k cap। हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है और हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। अगर हमें यहाँ पे एंगल पता होता ना ए और बी के बीच में, तब तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, ये वाला, ये चीज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा कर देते हैं। बट हमें तो एंगल पता ही नहीं है, तो कौन काम आएगा यहाँ पे, जो हमने अभी पढ़ा पीछे, जस्ट पीछे, वही फॉर्मूला हमारे को मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई। अब इसके लिए डिटरमिनेंट निकालना आना जरूरी है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। तो दिस विल बी -2 माइनस 15 माइनस j -4 -9 प्लस k कैप इंटू -3। और जिसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, -17 I कैप प्लस 13 j कैप प्लस 7 k कैप। तो ये आ गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। बट हमें क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए, हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो होगा इक्वल टू -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखो ये तो आप स्क्वायर करके निकाल लेना भाई, मुझसे तो नहीं होगा ये स्क्वायर। चलते हैं हम आगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6, फाइंड यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector, where a vector equal to I cap plus j cap plus k cap and b vector equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap। अब इस प्रॉब्लम को पढ़ो, क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकाल दो जो कि परपेंडिकुलर हो इसके भी और इसके भी, जहां पे ए ये है बी ये है। तो यहाँ पे कैसे निकाले भाई परपेंडिकुलर वेक्टर, सोचने वाली बात है। इन्होंने चालाकी से सवाल पूछा हमसे, बहुत ज्यादा चालाकी से। इन्होंने चालाकी क्या करी हमसे, अगर ये कह देते प्रॉब्लम में कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तब तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। अगर ये कह देते कि आपको ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तब तो इस प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं। आपके पास ए है, आपके पास बी है, आप इन दोनों का सम करो, सब्ट्रैक्ट करो और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो आपको आता ही है, पीछे ही देखा हमने प्रॉब्लम में, तब तो इस प्रॉब्लम में कुछ बचता ही नहीं। बट इन्होंने चालाकी से क्या बोला, एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इन दोनों वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर। और अभी जब मैं आपको बता रहा था पीछे, कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो मैंने उसमें क्या कहा था कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम करते हैं, तो जो रिजल्टेंट सी वेक्टर आता है वो ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर।
तो अब तो कुछ बचा ही नहीं इस प्रॉब्लम में. Okay, we have to just quickly sum up this problem. So A vector and B vector. So we have to find A vector plus B vector equal to I cap plus J cap plus K cap plus I cap plus 2J cap plus 3K cap. So this will be equal to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap. A vector minus B vector will be 0I cap minus J cap minus 2K cap. अब बस हमें पास बचा क्या है करने के लिए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है. अब वो तो आप आई होप कर सकते हैं. मैं एक बार फटाफट लिख देता हूं. सो आई जे के, दिस विल बी टू. ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना, नहीं तो पलट जाएगा. वैसे आंसर सही आएगा अगर आप पलट भी देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ही आएगा वैसे तो. हाँ, यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं. यहाँ पे तो 0 -1 -2, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट -2I cap plus 4J cap minus 2K cap. बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. सपोज सी वेक्टर है, ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा. हमें यूनिट वेक्टर निकालना है. तो मतलब कि सी वेक्टर को हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा. देन यू विल गेट द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर. ओके, सो इस क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.